Okay. Hello. Yeah. Good evening all. गुड इवनिंग मीनाक्षी। यार सॉरी है, पता नहीं वो लेंस मेरे लैपटॉप पे काम नहीं किया। पता नहीं कितने लोगों के लैपटॉप पे काम किया। लेंस करके जो नया लिए थे वो काम नहीं किया। आई एम वर्किंग विद कविता सिंस 4 o'clock। तो आप सबका काम कर रहा था क्या? लेंस वाला आप लोगों ने इंस्टॉल किया था? वो देन मोबाइल पे हुआ था बट हाँ, लैपटॉप पे मोबाइल नहीं पे हो हुआ। जाएगा। मोबाइल पे हो रहा था, एक करेक्ट। सो लैपटॉप पे नहीं हो रहा था। Then again, I thought that the same Zoom we can use it, but ये different Zoom था। उसका login password सब अलग थे। Okay, whatever it is. So at least I think our people will joined. Some no, I think some more will join. Just let me just raise your hands for your attendance. So meanwhile, I'll ask people to join. I think Chandrasekhar, everybody is trying. Okay, Chandraprakash is not okay. Rekha is there. Deptos is there. Okay, we can start then. You can start then. Okay. So, okay. So I think last class, Devtu, Sonali, you are not there, na? So, just for your information, we have discussed on the LSMW. So LSMW is a tool which we can use instead of taking help from the ABAP. We can create our own bulk uploader. Okay. So when I say bulk uploader, if fdash02, so every time user will not use fdash02 in your real-time scenario. So you get a customized T code. With that customized T code, you use to load the data. Okay. So so when you're getting a customized T code, then that's with the help of a ABAPer. But But without the help of the ABAPer also, how we can use LSMW and we can create those bulk uploaders that I have showcased. So do one thing, the last class, just check it and let me know if you people have any doubts. Just put me in the group so that I can answer it. Okay. So by now we have completed basic setting of, then global setting, financial global setting. Then we discussed on the GL, then we discussed on the AP, then we discussed on the AR. Now we have left out in the FI point of view, we left out with A. AA is for asset accounting. Okay. So before going to the asset accounting, we will read a very important topic. So today and tomorrow is very, very, very important. So be try not to be in off. So the topic is new GL accounting. Okay. So that will take me 2 classes to make you understand what is the new GL accounting, all those. So let me share my screen. Hello guys, you're able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because sometimes I feel that I'm talking to myself. Okay. So we'll go for new GL. Okay, what is this new GL? We already discussed on the GL, which is general ledger. What does this new GL mean? Ma'am, So, are you sharing screen? yes, dear, you're not able to see it? No, ma'am, not even I. Okay, let me reset it. Just 1 second. Now? Yes. Yeah, it's visible. Okay, great. So, coming to the new GL. So, we already discussed about the GL. So, that's about general ledger. So, what does this new GL do? What is the additional thing this new GL do? So, this new GL is will not impact your transaction. So, when you are posting a document, it will not do anything with your transaction data. But what it do then? So, it takes care of reporting. So this new GL, if I'm activating in my system, I'm activating only for the reporting. So what type of reporting I'm discussing about here? देखिए जैसे रियल टाइम सिनेरियो में देखते हैं तो अगर कोई एक कंपनी दे ऑल्सो हैज क्या हो गया यार इंडिया का इंडिया में और दे ऑल्सो हैज ए बिजनेस इन यूएस
ठीक है। तो वो जो कंपनी है उसको क्या करना पड़ रहा है कि इंडिया में उसको INDS फॉलो करना पड़ रहा है, एंड यहाँ पे गैप फॉलो करना पड़ रहा है या IFRS फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है। तो और दोनों जगह पे उसको रिपोर्ट भी करना पड़ रहा है। ठीक है। तो INDS is these are your accounting principles. So we have like INDS, IFRS, then we have ISS. So these are my accounting standards. So this is my Indian accounting standard. This is international foreign IFRS. आपको just check करना पड़ेगा, मुझे just मेरा ये हो गया है. So these are my accounting principles. ठीक है. So अगर मुझे एक कंपनी को सेम कंपनी को दोनों फॉलो करना है, एंड आवर एग्जांपल आवर कंपनी इज जियो. ठीक है। अगर वो जियो को सेम टाइम पे उसको INDS भी करना है एंड IFRS को भी फॉलो करके उसको रिपोर्टिंग करना है, तो सपोज द रिक्वायरमेंट इज द पोस्टिंग विल बी डन इन द INDS, बट द रिपोर्टिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी इन IFRS. रिपोर्टिंग मतलब जैसे हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड में हम लोगों का शेड्यूल 3 करके एक होता है. ठीक है. So the schedule 3 has a certain format के P&L में मेरा किस फ्लो में जाना चाहिए. लाइक P&L will have expense first, नहीं income first, then it will have indirect income. I'm giving you example. So it's then the expense, then something, then indirect expense. So suppose our INDS having this type of reporting format, and my IFRS suppose is having like they want the suppose it's not, I'm not saying that IFRS always need like this. So suppose they want the expense need to be in the first and P&L need to be in the second. Okay. To take care of this requirement, so that business will not do multiple time of posting. So the way to handle this situation is activating the new GL. So this is one of the you can say benefit the new GL is giving. What are the other benefits the new GL is giving? Like this, we'll take this example only. यही example में इंडिया में उसको अप्रैल टू मार्च में, सो फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, मार्च का जो भी एंड है उसका रिपोर्टिंग करना पड़ता है, पर यहाँ पे जनवरी से दिसंबर का. तो फिर सिस्टम में वो कैसे करेंगे? सिस्टम को कैसे पता चलेगा? वो कैसे फिर रिपोर्टिंग करेंगे? तो दैट ऑल्सो कैन बी टेकन केयर इन न्यू जीएल अकाउंटिंग. क्लियर यहाँ तक? क्या करता है तो न्यू जीएल अकाउंटिंग जब हम पोस्ट करते हैं उस टाइम पे उसका कोई रोल नहीं है. तो रोल इज मतलब पोस्ट करने के टाइम पे वो पीछे से क्या करता है, मैं इंडिया वाले अकाउंट में पोस्ट करती हूँ पर वो पीछे से US वाला अकाउंट अपडेट कर देता है, ताकि मुझे जो रिक्वायर्ड है IFRS के रिलेटेड अगर मुझे कुछ रिपोर्टिंग करना है तो मैं डायरेक्टली वो रिपोर्ट लेके कर सकती हूँ. और क्या बेनिफिट है? कुछ जैसे पोस्टिंग है मतलब जो कि IFRS में बोला गया है कि ये करना ही करना है ये पोस्टिंग्स. लाइक इन इंडिया वी हैव समथिंग लाइक 2 टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन. वन इज लाइक ROC बेस्ड डेप्रिसिएशन जो कि हम बोलते हैं कंपनी को डेप्रिसिएशन, और एक है इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन जो कि इंडिया का रिक्वायरमेंट है. ऐसे आप पकड़ लो कि US में ऐसा ही कुछ एक रिक्वायरमेंट है. तो वो जो स्पेसिफिक पोस्टिंग करना है वो भी हम यहाँ पे जाके पोस्ट कर सकते हैं, ताकि जो US गवर्नमेंट को हम रिपोर्ट कर सकें एज पर देयर रिक्वायरमेंट. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिफिकल्ट है? न्यू जेल कंसेप्ट समझ में आया? सो दिस इज द प्राइमरी पर्पस SAP जब ये न्यू जेल कंसेप्ट में आया कि मल्टीपल रिपोर्टिंग कैन बी पॉसिबल. मल्टीपल पोस्टिंग नहीं, मल्टीपल रिपोर्टिंग कैन बी पॉसिबल. ठीक है. और पोस्टिंग आपका वही एक ही पोस्टिंग होगा, तो एक पोस्टिंग से हम मल्टीपल रिपोर्टिंग्स करेंगे. ठीक है. देन कैसे करेंगे ये? तो दे हैव इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज लेडजर. ठीक है. तो हमेशा मेरा एज पर द स्टैंडर्ड लेडजर वी कॉल्ड इट 0L which is considered as a लीडिंग लेडजर. तो हमारा जो ये एग्जांपल है इस केस में क्या होगा, मेरा जो इंडिया का अकाउंट है ये हेड ऑफिस है, तो ये मेरा लीडिंग लेडजर है. मतलब जो पोस्टिंग
करूंगी मैं वो पोस्टिंग, मुझे मतलब जो मैं ऑन स्क्रीन में अपडेट 02 जो पोस्ट कर रही हूँ वो 0L में पोस्ट होना ही होना है। अगर मेरा 0L में कुछ भी पोस्ट हो रहा है, आई विल हैव वन नॉन लीडिंग लेजर। जितने भी मुझे प्रिंसिपल में जितने भी मुझे करना है, मतलब IFRS करना है या IAS करना है, जितने भी मुझे रिपोर्टिंग करना है उतना मुझे नॉन लीडिंग लेजर बनाना पड़ता है। ठीक है, फॉर आवर एग्जाम्पल आई टेक लाइक L1, बस एक ही लेती हूँ L1, दिस इज फॉर यूएस, हम लोग यूएस कैप के लिए कर लेते हैं। ठीक है, फॉर यूएस कैप। ठीक है, तो अगर मेरा IFRS का होता है तो मैं फिर L2 करके फिर मैं नॉन लीडिंग और एक लेजर करती हूँ, और दैट I'll say कि दिस इज IFRS। ठीक है, जितने भी मुझे रिपोर्टिंग है मैं उतना रिपोर्टिंग करूंगी। और जब जब मैं ये 0L में पोस्ट करूंगी, क्योंकि सिस्टम में जब हम पोस्ट करते हैं तब हम कोई अगर लेजर नहीं डाल रहे हैं पोस्टिंग के टाइम पे, देन इट मीन सिस्टम टेक्स दैट टू ऑल लेजर्स। ठीक है, और अगर भी मैं 0L में पोस्ट करूं स्पेसिफिक टू, देन ऑल्सो सिस्टम L1 या L2 में वो अपने आप उसको पोस्ट कर देगा। पर अगर मैं कुछ पोस्टिंग L1 में या L2 में स्पेसिफिक करती हूँ तो वो बाकी कोई लेजर में पोस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? मैं यहाँ पे मैप में बनाती हूँ। इफ आई एम पोस्टिंग, इफ नील होगा मतलब मेरा लेजर नील होगा, देन इट विल पोस्ट टू ऑल लेजर। ठीक है, अगर मेरा मैं 0L करके पोस्ट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ये 0L में पोस्ट होना है, दैट टाइम सिस्टम विल पोस्ट बाय नेचर। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगर मैं L1 या L2 को पोस्ट करूंगी, क्योंकि मैं क्यों L1 L2 को पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो कंट्री उस केस में सिर्फ L1 या L2 जिसमें मैंने पोस्ट किया है बस उसी में ही पोस्ट करेगा, बाकी दो में पोस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब कॉन्फ़िग हम कैसे करेंगे और कैसे हमारा रियल टाइम में जब पोस्टिंग होगा कैसे वो ऑटोमेटिक ये मैं जब 0L में करूंगी कैसे L1 L2 में जाएगा, वो हम सिस्टम में जाके 1 by 1 देखेंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर है, न्यू GL क्यों चाहिए? जस्ट फॉर रिपोर्टिंग। ठीक है, लेट मी गो टू SAP। हम लोग को थ्योरी क्लियर है ना, तो फिर प्रैक्टिकल करना आसान हो जाएगा मुझे। गाइस यस मैम। देख, तो आपको तो ये पता होगा थोड़ा बहुत पहले ना, पूरा आपका समय सिस्टम। मैंने थोड़ा स्टडी किया था इसके ऊपर पहले, हाँ हाँ, उतना डीप अभी मतलब चल रहा है पता। गुड। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरेलल लेजर्स। ठीक है, व्हाट डज पैरेलल लेजर मीन और पैरेलल अकाउंटिंग? और पैरेलल अकाउंटिंग सेम है दोनों। पैरेलल अकाउंटिंग या पैरेलल लेजर क्या है, जो अभी हम लोग अभी तक बात किए कि पैरेलल मतलब मल्टीपल लेजर्स, तो उसके ऊपर कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे दैट वी विल सी नाउ। ठीक है, जो मैंने अभी आपको जो बताई दैट्स ओनली कॉल्ड पैरेलल। पैरेलल मतलब मल्टीपल लेजर करेंगे। ठीक है, तो सेम एसपीआरओ स्क्रीन, आप लोग तो प्रैक्टिस नहीं करते हो एसपीआरओ, तो ढूंढ भूल गए होंगे स्क्रीन, क्योंकि हम लोग तो 15 दिन से गए नहीं एसपीआरओ में। क्या भूल गए? सो एसपीआरओ IMG, तो अभी हमें अंदर कर रहे थे। नाउ वी विल डू इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू। तो अगर अभी आप जाओगे सिस्टम में मतलब अगर रन टाइम सिस्टम में क्योंकि ये IDS है, तो IDS में क्या है, दोनों है, ताकि आपको पढ़ाया जाए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, न्यू में क्या है। अदरवाइज रियल टाइम में आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, इधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू या फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, then I'll go for the financial accounting global setting, then I'll go for the ledger because I want to create the ledger. So I'll go for the ledger, then again ledger, then I'll say define ledger for general ledger accounting. Just so this is the first step I'll do.
और जो डॉक्यूमेंट मैंने दिया है उसमें इसका स्टेप नहीं है। लेट मी ट्राई टू पुट दिस स्टेप्स, ठीक है, आपके लिए मैं डालती हूँ, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया उसमें ये स्टेप्स नहीं है, और आपका जो करिकुलर भी गया है उसमें भी ये नहीं है। ये मैंने आपको एडिशनल क्यों बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं इसका स्टेप में फिर से आपको अलग से दूंगी। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो जैसे हमने अभी पढ़ा के एज पर स्टैंडर्ड मेरा हमेशा 0L जो होता है लीडिंग लेजर है, ठीक है। तो लीडिंग लेजर है करके कैसे पता चला, यहाँ पे मेरा टिक है। SAP allow me to change this leading ledger from 0L to any other, but it is advisory not to change it. So always मेरा 0L मेरा leading ledger करके ही रहता है, ठीक है। और अभी क्या करूंगी मैं, मुझे और एक लेजर चाहिए। 0L तो मेरे लिए पड़ा है, लेट मी सी L1 बन गया है क्या। L1 नहीं बना है, तो I'll go for the new entry. I'll say L1 and I'll say this is for US GAAP, ठीक है। Here I have to put a table. So the table is Fegel Flex T. तो जब भी मेरा लेजर रिलेटेड कुछ होता है तो it get updated in this Fegel Flex T table. तो I'll save it. Child 1 already तो दिखा तो नहीं। Okay, then I'll do for B1. B1 भी है, how come? Let me see कौन सा नहीं है, दिख तो नहीं रहा है B1 L1। One second, let me see क्या इसमें L1 है। Let me see once. L1 है तो नहीं, क्यों नहीं दे रहा है, L1 तो है नहीं। Let's do again. यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या L1? L1 तो दिख नहीं रहा है, तो ये एरर आना नहीं चाहिए। हो सकता है वो अभी डिलीट किए होंगे, कुछ होगा। यूएस का फेगल फ्लेक्स टी, नो, ओके। Z1 भी है क्या, कौन सा बच्चा है, 1 ओके। तो हमारा जो लेजर है हमने क्या किया, 1 करके किए, ठीक है, क्योंकि सारे यूज थे। सो इंस्टेड ऑफ L1, तो यहाँ पे क्या मैसेज आया कि जब हमें लेजर बना रही हूँ तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लेजर ग्रुप 11, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। तो मैं अगर अभी और एक लेजर बनाने जाऊंगी तो 1 more लेजर ग्रुप विल गेट क्रिएटेड, ठीक है। और जब भी मेरा पोस्टिंग कुछ भी होता है लेजर ग्रुप में होता है, देन इट गेट ट्रांसफर टू लेजर, ठीक है। सो आई विल डू टिक। सो इंस्टेड ऑफ L1 वी हैव यूज्ड 11, हमें ये मिला नहीं तो वी हैव यूज्ड 11, ठीक है। आई विल गो बैक। So you can see here I have created this US cap. So मेरा ये जो है Fragile Flex T टेबल है, तो मैं आपको एक बार ये टेबल भी दिखाती हूँ। तो जब भी मेरा न्यू जीएल में कुछ पोस्ट होगा, ये मेरा टोटल वाला टेबल है, तो मेरा टोटल वाला टेबल इज द Fragile Flex T. So this टेबल, तो इसमें मुझे मेरा जीएल लेवल का बैलेंस दिख सकता है जब मैं न्यू जीएल कंसेप्ट ओपन करती हूँ तब भी, ठीक है। बैक। So my ledger is defined. So my ledger is 11. Okay. So if I go inside, okay, it will not allow. Okay, no problem. We'll see it later on. So it's 11 US cap, then Flagel Flex T. So and this is a non-leading ledger because the tick is not done here. Okay. Then I'll go back. I'll say okay, define currency of ledger accounting. So okay, I have defined the ledger, but I should say system that okay, this is my ledger and this will be the currency of that ledger. So here I'll go for my company code JIO3। अभी हम लोग जो नया कंपनी कोड यूज कर रहे हैं तो मेरा है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे तो बनाया नहीं है अभी।
So let me go for new entry. I'll say JIO3. Then मेरा जो local currency है वो कहाँ से उठा के लेके आएगा? ऑलरेडी मैंने JIO3 में जो करेंसी डाला है जो कि INR है वो ऑटोमेटिक मेरा फर्स्ट करेंसी लोकल करेंसी हो जाता है. देन द सेकेंड करेंसी मेरा कौन सा होता है? नॉर्मली मेरा जो ग्रुप करेंसी है वो होता है मेरा सेकेंड करेंसी. एंड थर्ड करेंसी मेरा होता है हार्ड करेंसी. ठीक है, इसी में मेरा 3 करेंसी तक अलाउड है. एंड इन S4 आई हैव द अलाउड ऑफ 10 करेंसीज. ठीक है, दिस फॉर योर इंफॉर्मेशन. सो एंड द करेंसी टाइप फॉर ग्रुप करेंसी इन स्टैंडर्ड इट इज 30. ये स्टैंडर्ड है 30. अगर मैं जाऊं F4 करूं, so you can also able to see group currency is 30. Then I'll say valuation I'll not put, so I'll say exchange rate type it is M. So M is the medium price. So I'll tell you this one also. I forgot that I have not discussed with you about the exchange rate. That is still there. We will discuss. Meenakshi, Yeah, please tell sorry me. for interruption. What exactly it is related to currency group 30? 30 is the group currency. Okay. So for example, I have, see, in our case, it is okay that we have only one company code. So for example, I'll take you example like a company's head office is in India and their sub offices are in US, Canada, UK. So in US means it is in USD. In Canada means it is in CAD. So like that, the currencies are different. So those are called my local currencies. Okay. But at the same time, the India is their head office. So they need to do the consolidation of whatever the postings done in my USD or in my Canada. So they consider that, okay, whatever you do the posting in your other company code, while doing grouping, you should group it in the currency INR only. So that time my group currency comes into picture. Okay. Okay, got it, or I'll put it in Excel. No, understood. So ma'am, I'm so sorry. So No, it's tell me like, now. yeah, so whichever state it comes, so it takes according to that state, currency. Correct. So this is my local currency. Okay, let me again. Wait. I'll show you already. If anyone has any group currency, I can show you the example. Yes. Okay, no problem. Okay, see, this is a company code. Just I taken because they have all the data. Okay, so see, you can see this is a company. This is a Indian company. Lois something India it is there. Na? So this is a Indian company. Their local currency. This local currency where it is, where we got this value of INR when we created the company code. So we have given that the current, what is the currency of this company code. So I'll show you that OX04. Sorry, OX02. So here we say, so like in our JIO3, I say that this is my company code and this company code's currency is INR. This is my local currency. And I'm saying now to system that I also has a group currency. I can say that is also INR because it's my Indian company, but for taking the example, we will take as USD as my currency. Got it or no? Group currency concept, you got it or no? Hello? Yeah, No, I don't think, na? With your, huh? bit And confused. no problem. Let me clarify. Suppose I have a company at India. ठीक है, हम जियो का एग्जांपल लेते हैं. अब भी कैसा है, हमारा एक ही कंपनी कोड है इंडिया का. ठीक है, पर पकड़ लो कि इंडिया का भी हमारा एक कंपनी कोड है, यूएस का भी एक कंपनी कोड है एंड यूके का भी एक कंपनी कोड है. ठीक है, और कनाडा का भी एक है. तो मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, तुम जितना भी तुम्हारा बिजनेस करो वो तुम्हारा यूएस कंपनी कोड में तुम डालते चलो in USD currency, and in UK you will put it in GBP currency, and in Canada you can put it in CAD currency. But
और यहाँ पे तुम्हारा इंडिया का जितना हो रहा है तुम INR में डालो। पर एंड ऑफ द डे अगर मुझे ग्रुप लेवल पे जियो का देखना है तो आई वांट टू सी इट इन INR करेंसी ओनली। सपोज मैं बोल रही हूँ तो इस केस में क्या होगा, मेरा लोकल करेंसी इंडिया वाला कंपनी कोड का लोकल करेंसी होगा INR, ग्रुप करेंसी भी होगा INR। यूएस कंपनी कोड का मेरा लोकल करेंसी होगा USD, ग्रुप करेंसी होगा INR। सेम वे कनाडा का CAD, देन ग्रुप करेंसी होगा INR। क्लियर? यस तो मैम। ये मुझे कंसोलिडेशन के लिए फिर इजी होता है। ठीक है। इट मीन्स कि हम लोग बेसिकली अपने को जो करेंसी में देखना चाहते हैं उसमें वो एक ग्रुप करेंसी में रहेगा, बेसिक करेंसी जहाँ पे हमें एक मेन करेंसी में देखना है, एंड देन अदर कंट्रीज वाइज एज वेल हम लोगों को वो देखने के मिल सकता है। नो 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 नो, नहीं, मेरा ये कंपनी कोड है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, जियो3 जो हमने किया है वो इंडिया का रजिस्टर्ड कंपनी है। सपोज आई हैव वन मोर कंपनी है जियो4, वो US रजिस्टर्ड है, और एक है जियो5 वो UK रजिस्टर्ड है, जियो6 वो कनाडा रजिस्टर्ड है। ठीक है, और मैं जब भी ये जियो4 में कोई पोस्टिंग करती हूँ USD में कर सकती हूँ, दूसरे करेंसी का भी पोस्टिंग कर सकती हूँ, पर वहां पे मेरा जो रिपोर्ट निकलने वाला है वो USD का ही निकलेगा, क्योंकि वहां का जो लोकल का जो करेंसी है वो USD है। ठीक है, और वैसे ऐसे ही मेरा एक जियो5 करके कंपनी कोड है, उसका मेरा लोकल करेंसी GBP है। मैं भले ही दूसरे दूसरे करेंसी में ट्रांजैक्शन करूं, उसको GBP में रिपोर्ट करना ही करना है। ठीक है, ये सब अलग अलग कंपनी कोड है, डोंट गेट कंफ्यूज विद द लेजर। हाँ, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रुप करेंसी क्यों चाहिए। तो ग्रुप करेंसी मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे देखना है कि जियो का कितना पैसा इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ, वो मुझे INR में देखना है। तो ये सारे कंपनी कोड के लिए मेरा जो ग्रुप करेंसी है INR होगा, ताकि एंड ऑफ द डे मैं उसको ऐड कर सकूं कि अच्छा ये एक्सपेंस है या ये इनकम है। क्लियर है अभी? Yes, ma'am. Thank you. ओके। नहीं, इसलिए आपका ओके में ना, जब तक मुझे अच्छा वाला ओके नहीं मिलता है मैं आगे नहीं जाती हूँ। Yeah. तो ओके, लेट्स गो। सो JIO3, सो जस्ट मैं अगर एंटर करूं, सी ये कहाँ से आया, मैंने सिर्फ एंटर की, मैंने कुछ नहीं डाली। ये INR कहाँ से उठा के लेके आया अभी आपको पता है? INR मेरा कहाँ से उठा के लेके आया बताइए? ये जियो3 में INR कहाँ से उठा के लेके आया? तो ऑलरेडी इस कंपनी कोड में रहेगा, कंपनी कोड में है। वेरी गुड। तो यहाँ से मेरा सिस्टम को मैं बता रही हूँ कि मेरा ये जो है मेरा करेंसी है, लोकल करेंसी यहाँ पे बता रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिक उसको INR करके ले लिया। अभी मैं मेरा जो दूसरा वाला है, मैं एक्सचेंज रेट M, फिर ये मेरा सोर्स करेंसी, तो सोर्स करेंसी मेरा ट्रांसलेशन टेकिंग फर्स्ट लोकल करेंसी एज ए बेसिक। तो मैं बोल रही हूँ कि ये भी मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है। करेंसी का बताती हूँ मैं। एक होता है मेरा ट्रांजैक्शन करेंसी, ठीक है, एक होता है मेरा लोकल करेंसी, एक होता है मेरा ग्रुप करेंसी। अभी हमने समझ लिया कि लोकल करेंसी क्या है। लोकल करेंसी वो जो कंट्री है उसका जो करेंसी चल रहा है, जो कंपनी कोड का कंट्री है, वो कंट्री करेंसी इज माय लोकल करेंसी। ये क्लियर है? ये क्लियर है ना अभी जो हम बात कर रहे थे? मतलब इंडिया का है तो INR है, US का है तो USD है, UK का है तो GBP है। दैट्स माय कंट्री करेंसी। ग्रुप करेंसी क्या है? मेरा ग्रुप लेवल पे जो रिपोर्टिंग के लिए चाहिए वो मेरा ग्रुप करेंसी। ये हमारे एग्जाम्पल के लिए ये मेरा INR है। इस केस में हो सकता है कि किसी का हेड ऑफिस US में, तो उसका USD हो जाएगा ग्रुप करेंसी। फिर ये ट्रांजैक्शन करेंसी क्या है? ट्रांजैक्शन करेंसी और ट्रांजैक्शनल करेंसी क्या है कि सपोज मुझे किसी वेंडर ने एक इनवॉइस दिया, एक वेंडर इनवॉइस दिया जो कि किसको दिया? JIO3 कंपनी को दिया, JIO3 कंपनी को दिया,
और वो जो इनवॉइस है उसने दिया है मुझे जीबीपी करेंसी में। ठीक है, तो और थोड़ा क्लैंजी करते हैं। JIO4 को दिया, ठीक है। JIO4 मतलब यूएस कंपनी को दिया है, ठीक है। मेरा यूएस कंपनी को एक इनवॉइस दिया जिसका करेंसी था जीबीपी। दे सकता है ना, क्योंकि वेंडर वेंडर मेरा लंदन का है, तो वो लंदन के करेंसी में मुझे इनवॉइस दिया। दे सकता है ना, दे सकता है ना वो अपने करेंसी में। या गाइस, दे सकता है ना, मतलब वो अपने करेंसी में मुझे दिया, तो वो जीबीपी करेंसी में मुझे एक इनवॉइस भेजा। तो इस केस में मेरा ट्रांजैक्शन करेंसी क्या होगा? जीबीपी होगा, जी क्योंकि उसने मुझे जीबीपी में दिया है। लोकल करेंसी क्या होगा? यूएसडी होगा। और मेरा ग्रुप करेंसी होगा आईएनआर। आए ना। क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। गुड। तो उसने सपोज मुझे 10 जीबीपी का दिया है, ठीक है। और मुझे मेरा जीबीपी टू यूएसडी कन्वर्जन जो है, सपोज पकड़ लो 10 ही है, मतलब 1 जीबीपी इक्वल टू 10 यूएसडी। ऐसा नहीं है, मैंने फॉर एग्जांपल में ले रही हूँ, ठीक है। तो मेरा सिस्टम क्या करेगा? सीधा जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉरी मल्टीप्लाइड इनटू 10। तो सिस्टम क्या करेगा? यूएसडी वैल्यू लेके आ जाएगा। मतलब 10 100 रुपीज, मतलब अगर मेरा 10 जीबीपी है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि 1 जीबीपी का 10 यूएसडी है, तो मेरा अभी 100 यूएसडी का लोकल करेंसी है। सेम वे अगर मैं बोल रही हूँ कि यूएसडी टू आईएनआर कन्वर्जन में मैं बोल रही हूँ कि 1 यूएसडी सपोज मेरा 80 रुपीज है, तो सिस्टम क्या करेगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल पोस्टिंग होगा। क्लियर है गाइस? क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट करने के लिए आई एम रेडी। ये फाइनेंस पर्सन, हमें ये पता होना ही चाहिए क्या चलता है इसमें। क्लियर है? जिसको Ma'am, क्लियर could you नहीं है please म्यूट ऑफ करो repeat it once again? वन सेकेंड, ठीक है। Actually, I'm having some connectivity issue. नो प्रॉब्लम, पर जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है उसी स्टेप में मुझे रोकिएगा, ठीक है। तो सपोज एक वेंडर है जो मेरा लंदन बेस्ड वेंडर है, और उसने मुझे एक इनवॉइस दिया है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, ठीक है, जीबीपी में। तो वो इनवॉइस को मैं लेके आई। वो किसके लिए दिया था? मेरा यूएस कंपनी के लिए दिया था, जो कि अभी हमने ये बनाया नहीं है, ये एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। मेरा JIO4 करके एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उसके लिए उसने वो इनवॉइस दिया था। तो मैं क्या करूंगी? मेरा ट्रांजैक्शनल करेंसी हो गया है जीबीपी, और मैंने JIO4 में तो ऑलरेडी यूएसडी डाला है, तो वो यूएसडी। और मेरा ग्रुप करेंसी मैंने ऑलरेडी कन्फिग किया है आईएनआर। वो कहाँ पे करती हूँ? मैं यहाँ पे करती हूँ, ये जो स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। तो उसने सपोज मुझे जीबीपी 10 जीबीपी का एक इनवॉइस दिया है, और मैंने सिस्टम में ऑलरेडी एक कन्वर्जन रेट में बना के रखी हूँ। वो कहाँ से आया है? वो मेरा एक थर्ड पार्टी टूल से आ सकता है, या थर्ड पार्टी टूल जब मैं बोल रही हूँ कि ब्लूमबर्ग, ये सब मेरे प्रोवाइडर्स देते हैं कि वो एक्सचेंज रेट का देते हैं कि ठीक है आज के डेट में, एंड दिस एक्सचेंज रेट अगेन गेट चेंज एवरी डे, ठीक है। तो एवरी डे सपोज मुझे डेटा आता है और मेरा डेटा लोड होते रहता है सिस्टम में, तो वो डेटा में ये है कि 1 जीबीपी इक्वल टू 10 यूएसडी। तो मेरा सिस्टम क्या करेगा? 10 जीबीपी है तो वो 100 करके डाल देगा लोकल करेंसी में। सेम वे अगर मेरा 1 यूएसडी इक्वल टू 80 आईएनआर, तो सिस्टम क्या करेगा? 100 यूएसडी इक्वल टू 8000 यूएसडी करके आईएनआर करके पोस्ट करेगा। तो जब पोस्ट होगा, ट्रांजैक्शनल करेंसी 10 रुपीज होगा, सॉरी 10 जीबीपी होगा, 100 यूएसडी पोस्टिंग होगा, एंड 8000 आईएनआर पोस्टिंग होगा। जब पोस्टिंग होगा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, पर ये जो करेंसी का ऐसे मेरा कन्वर्जन चलता है, ठीक है। ये जो मेरा एक्सचेंज रेट मेंटेन होता है वो कहाँ पे होता है? 1T कोड इज देयर, सो जस्ट आई, बिकॉज करेंसी थिंग केम, सो आई थॉट कि आई गिव यू क्लैरिटी। सो ये वाला मेरा जो होता है दिस कॉल्ड OB08। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो एक्सचेंज रेट है, तो मैं यहाँ पे कैसे करती हूँ? सपोज आई एम पुटिंग ए डेट, न्यू एंट्री,
न्यू एंट्री, और मेरा एक्सचेंज रेट हमेशा यहाँ पे एक्सचेंज रेट मेरा एम होता है। एम इज फॉर द मार्केट प्राइस, मेरा मार्केट प्राइस में जो रहता है स्टैंडर्ड प्राइस वो मैं लेती हूँ, तो एम है। आज का डेट का सपोज मैं डालती हूँ तो 06/05/2023 एंड इनडायरेक्ट कोड जस्ट टाइमिंग, यू इग्नोर दिस। पहले ये समझो क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा जैसे एग्जांपल था, तो उस बेसिस पे अगर मैं जाऊँ तो मैं क्या करूंगी, आई पुट के जीबीपी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? आई से के Yes, 10, ma'am. ठीक है, जीबीपी 10 एंड आई से के यूएसटी। तो आई एम सेइंग कि जीबीपी मेरा 10 है, तो जीबीपी मेरा जब मेरा 1 है तो तुम्हारा यूएसडी 10 है। यहाँ पे देखो इक्वल टू फ्रॉम इक्वल टू डायरेक्ट कोड 10 टू यूएसडी, मतलब 1 जीबीपी मेरा यूएसडी 10 है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट कोड। अगर मैं यहाँ पे यूएसडी डालती हूँ, यहाँ पे जीबीपी डालती हूँ, अगर मैं सिस्टम को बोल रही हूँ कि तुम डिवाइड करो, देन आई पुट इट एज इनडायरेक्ट कोड। ठीक है, इफ आई सेव दिस देन सिस्टम विल कंसिडर जीबीपी टू यूएसडी 10 करके ही करेगा। ठीक है, जब पोस्टिंग करेंगे हम ये देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो टाइम बिंग कमिंग टू योर करेंसी वाला सेटिंग करने के लिए, सो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी जो लोकल करेंसी वो तो ऑलरेडी ग्रेड आउट है, और सिस्टम में आईडीएस सिस्टम में बाय डिफॉल्ट मेरा ग्रुप करेंसी यूएसडी करके ही होता है। अदरवाइज आप रियल टाइम में जाओगे तो सिस्टम में आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगी, सोर्स करेंसी। सोर्स करेंसी में क्या बोल रहा है कि ट्रांजैक्शनल टेकिंग ट्रांजैक्शनल करेंसी एज ए बेस या लोकल करेंसी। तो नॉर्मली हम लोग का लोकल करेंसी से ही मल्टीप्लाई होता है। तो क्या बोल रहा है सिस्टम कि तुम ये जो 8,000 रुपीज है इसको कैसे तुम डिराइव करने वाले हो, 100 मल्टीप्लाइड बाय 80 करने वाले हो, या 10 मल्टीप्लाइड बाय 800 करने वाले हो। तुम कौन सा वाला रेट मेंटेन करने वाले हो और किस बेसिस पे तुम्हें उसको ट्रांसलेट करना है। तो आई से कि नहीं, मुझे हमेशा मिलेगा यूएसडी टू आईएनआर, मैं जो भी होगा मेरा ट्रांजैक्शनल करेंसी उसको मैं मल्टीप्लाई करके रखूंगी यहाँ पे, और उससे तुम्हें लेना है। तो आई सिलेक्ट 2। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन डेट टाइप, क्या है ट्रांसलेशन डेट टाइप, तो डॉक्यूमेंट डेट लेना है या पोस्टिंग डेट। तो ये हम लोग ऑलरेडी बात किए थे कि ट्रांसलेशन डेट कौन सा वाला होना है। सो आई से के डॉक्यूमेंट डेट। ठीक है, इफ आई पुट एंटर चेंज द करेंसी इन लाइव सिस्टम कैन लीड टू एरर। ओके, ये लाइव कब हो गया सिस्टम, एक मिनट, क्योंकि हमने ऑलरेडी पोस्ट किया है तो सिस्टम से कि इट इज ए लाइव सिस्टम। तो तुम, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पोस्टिंग चल रहा था, तो तुम इसमें कैसे पोस्ट कर सकते हो। लेट मी सी, आई थिंक OX0 OBY6। So let me come out. Let me come out from all T codes, then system will allow me. ओके, टाइमिंग देखते हैं कि क्या है। सो OBY6 में जाते हैं, विल से, और क्या है, दूसरा कोई है, हम लोग तो नहीं है ना, नहीं, I have to take him out, बस कब से वो बैठे हैं। I'll go for JIO3. Let me see if it is a production based company code or what. नहीं, प्रोडक्टिव तो है नहीं। आईडिया सिस्टम में कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है कि वो करने नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रोडक्टिव इंडिकेटर टिक होता तो मुझे करने नहीं देना चाहिए, पर हमारे केस में वो करने नहीं दे रहा है। लेट मी सी, ठीक है।
So this is not productive company. Still why it says, let's see, this is not productive company. So यहाँ पे अगर टिक होता then वो error जो है वो valid होता. Let's go and see once again. So we have to go SPRO, IMG, financial accounting new, financial global setting, ledger, currency for leading ledger. Then I'll go for, I saved it. I'll go for JIO3. I'll do enter. Currency type 30. Exchange rate type M. 2, 1. Let me see what to do. Before you continue, it is essential that you read this text carefully, okay? About to change the additional local currency for the company code if transaction data exists in the. तो एक नया कंपनी कोड करके मुझे आपको दिखाना पड़ेगा. एक्चुअली वो अलाउ करता है, हमने पहले किया है, ये अलाउ करता है, पर ये आईडीए सिस्टम में अलाउ नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बोल रहा है, मैंने आपको बताया थी ना कि आईडीए सिस्टम में मेरा यूएसडी करके करेंसी होता है. सो नो प्रॉब्लम. सो ये भी करने नहीं देगा क्या? ठीक है. आई एम नॉट टेकिंग द ग्रुप करेंसी टाइम बिंग, क्योंकि ग्रुप करेंसी अगर मैं ले रही हूँ तो सिस्टम मुझे एरर दे रहा है. लेट्स गो एंड डू फर्दर पोस्टिंग्स. मैं और एक जो JIO2 कंपनी है, अदरवाइज मुझे JIO4 करके कल में रखूंगी और उसमें हम लोग ये लोकल करेंसी ऐड करेंगे. अभी सिस्टम क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी पोस्टिंग हो गया है, उसको मैं कैसे चेंज करूँ? ठीक है, क्योंकि उसमें तो तुम्हारा ग्रुप करेंसी है नहीं, तुम अभी बता रहे हो ग्रुप करेंसी चाहिए, तो मैं कैसे करूँ? तो इसलिए वो सेव करने नहीं दे रहा है. तो बट वी विल डू इट इन ए JIO4 करके मैं कंपनी कोड बनाऊंगी, उसमें करेंगे. बट टाइम बिंग दिस इज योर सेकंड स्टेप. देन ये मेरा करेंसी का सेटिंग हो गया. देन आई से डिफाइन एंड एक्टिवेट नॉन लीडिंग लेजर. तो अभी हमने क्या एक नॉन लीडिंग लेजर बनाया था, 11 करके बनाए थे. अभी हम इसको न्यू एंट्री, द कंपनी कोड इज JIO3. आई से करेंसी, my currency will be C2 will be INR. I'll say INR. Then I'll say here also I'll say INR. यहाँ पे this is very important ना. This is my financial version. So सिस्टम मुझे पूछ रहा है कि मेरा जो फिस्कल ईयर वेरिएंट है, जो हमारा बात हुआ था कि फिस्कल ईयर वेरिएंट जो है वो अप्रैल से मार्च है या मार्च टू जनवरी है, क्या है तुम्हारा? मतलब जो है सेटिंग में, मतलब वो कंपनी कोड को लेके, मतलब जैसे यूएस बेस्ड है तो मेरा वो जनवरी टू दिसंबर है. तो अभी मुझे वो बेसिस पे करना है, तो आई मेक इट के जनवरी टू दिसंबर ही है. तो लेट्स सी कुछ मिल रहा है क्या जनवरी टू दिसंबर, क्योंकि हमारा वाला कौन सा था, याद है किसी को? किसी को याद है या सब भूल गए यार? J3 था. तो टाइमिंग लेट्स टेक इट J3 ओनली. ठीक है, क्यों भाई? ठीक है, यस, क्यों नहीं ले रहा है? सेकेंड. ओहो, ये प्रोडक्शन कंपनी में मुझे दे नहीं दे रहा है, मतलब पोस्टिंग है ऑलरेडी तो सिस्टम अलाउ ही नहीं कर रहा है. तो कल मुझे फिर एक कंपनी कोड बना के आपको दिखाना पड़ेगा, नया कंपनी कोड. क्योंकि मुझे करने नहीं दे रहा है. क्यों करने नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है सबको? गाइस क्यों करने नहीं दे रहा है, बताएंगे? हैं? नहीं बताना है किसी को? हेलो.
Yes, ma'am. क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रोडक्शन सिस्टम का पोस्टिंग पड़ा है, तो सिस्टम मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं लेजर में किसी को ट्रांसफर कर सकूं, ठीक है। क्योंकि ये सब अगर कर दूंगी, अभी ऑलरेडी पोस्टिंग होके है, तो उसका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो लेट मी डू वन थिंग, कल मैं बोलती हूँ इन लोगों के एक्स्ट्रा क्लास हम लेते हैं 1 घंटे का, और आई क्रिएट वन मोर कंपनी कोड फॉर यू गाइस टुमारो, और उस कंपनी कोड में फिर ये हम लोग एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि उसमें फिर पोस्टिंग नहीं होगा। विल डायरेक्टली एक्टिवेट टू जस्ट टू लर्न के न्यू जीएल कंसेप्ट कैसे होता है, ठीक है। आज के लिए मैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो क्योंकि मैं अभी कंपनी कोड बनाऊंगी अभी बैठ के, तो लेट्स क्लोज द सेशन टुडे। कल हम लोग फिर से मिलते हैं, देन आई विल शो यू अदर स्टेप्स, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि ये करने Okay, नहीं दे ma'am. रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव कंपनी कोड है, तो वो करने नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर मैं कल नहीं कर पा रही हूँ तो हम लोग ऐसे अकाउंटिंग पढ़ेंगे, पर आई डू इट नाउ ओनली, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो सी यू गाइस टुमारो। सेम जूम का हम लिंक यूज करेंगे, क्योंकि वो जूम काम नहीं कर रहा है, तो विल यूज द सेम जूम लिंक। तो लेट्स कनेक्ट ऑन टाइम टुमारो सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस न्यू जीएल कंसेप्ट, ठीक है। श्योर मैम। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके।